बीइंग अ साइकिक रीडर, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहना थोड़ा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड डीपली फ्यू थिंग्स। लाइफ में यू हैव बीन अ हीलर और इनटू दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स। आपने कब से अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी और ये स्पिरिचुअल पाथ चूज किया? हाँ भाई, ये मेरे लिए सही है, आई लाइक डूइंग दिस। हाउ डिड यू फील इट? व्हेन डिड यू स्टार्ट इट? Clinical psychology is a tool or maybe science through that we can understand what kind of problem you are having as per the scientific research. CBT हो गया, REBT हो गया, ये जितनी भी हम लोग थेरेपी देते हैं ये हम यूज करके उनको हेल्प करते हैं। व्हाट इज CBT? बट अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है तो उसको समझ में, वो कैसे समझ पाए कि हाँ भाई मैं ऐसे एक रिलेशनशिप में हूँ? ओके, What are the signs basically? The one thing every 20 something gets wrong about love. तो destiny number क्या होता है? डेस्टिनी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड का एग्जांपल। Welcome to another episode of Hi and Why. Megha Sharma is proof that science and spirituality don't have to sit on opposite sides of the room. A clinical psychologist, psychic reader, tarot expert, and Vedic numerologist, she is the founder of Success Mark and brings 14 years of experience. In this episode, we get into tarot versus sharp psychology, karmic relationships, past lives, inner child healing, Vedic numerology, and what today's generation is really struggling with from someone who reads both the mind and energy behind it. Let's welcome her. Welcome, Megha. Welcome to High on Why. I think it's a great opportunity today that you're here, and I'm able to talk to you regarding so many things right now. So thank you for being here. Thank you so much for inviting, and it's really a great pleasure to be here today along with you. Asha, Megha, on the first place, as I was thinking, and that is what I got it from you also when I was talking to you. Clinical psychology and a psychic reader as a general audience, okay? I feel it's two contradictory, Okay. two contradictory things, because psychologists जिनसे मैं मिली हूँ, they are probably the coach or the counselors, right? And psychic reading is the probably a modality, or it is a medium to guide people, maybe tarot हो गया and other healing modalities. If just correct me if I'm not right. But how come you are doing both at the same time, and especially when people come to you with some of the problems? So how do you manage to select, okay, this is what is the right choice for them, let's take this medium to go? So first of all, you can explain me what it is, and then with a case you can just tell me. It's a very interesting question, and I think most of the people asked the same question with me कि मेघा कैसे ये दोनों चीजें एक Exactly. साथ आप मैनेज कर लेते हो? अगर clinical psychology is a tool or maybe science through that we can understand the what kind of problem you are having as per the scientific research. CBT हो गया, REBT हो गया, ये जितनी भी हम लोग थेरेपी देते हैं ये हम यूज करके उनको हेल्प करते हैं। as What per the is CBT? cognitive behavior therapy. Okay, another term which you use? जितना ज़्यादा लोअर चक्रास पे आप फ्यूज्ड फील करोगे उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी किसी दूसरे इंसान की कि वो मुझे हेल्प करे। Okay. यू विल नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। Hmm. बट होता क्या है, धीरे 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 करके जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हो आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर उठने जल्दी एक्टिवेट हो गया तो आप दूसरों के दर्द को आराम से समझ पाएंगे। साइकिक, अब वो एनर्जी जब और ऊपर जाएगी तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे आप जब वो बात बोलेंगे सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। Hmm. फिर हम बात करते हैं कि आपकी थर्ड आई चक्रा पर, आज्ञा चक्र जिसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, यहाँ जब एनर्जी आ जाती है तो आप अवेयरनेस में आ जाते हो। तो आपको जो चीज़ें आसपास में चारों तरफ हो रही हैं वो आपको बहुत नॉर्मल लगेंगी, इवन दो इट इज़ नॉट नॉर्मल। Okay. राइट Hmm. तो अब अवेयरनेस में आने के बाद आपका क्राउन चक्रा बचता है। Hmm. अब हम क्राउन चक्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एज अ ह्यूमन बॉडी नहीं देख रही हूँ, एज अ सोल देख रही हूँ। Hmm. बिकॉज मैं भी अपने आप को एज अ सोल ही अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो सोल को अंडरस्टैंड कर रही है। अब मैं क्या है, साइकिक मैसेज मुझे मिल रहे हैं। तो हमारे मास्टर्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे डेटीज होते हैं, हमारे एंसेस्टर जो हमें गाइड करते हैं। अब ये जो इंट्यूशन और गाइडेंस मिलती है इन द साइकिक, ये भी डिफरेंट ठीक Okay. है। Okay. हर किसी को एक तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती है। Okay. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को तो उनको प्रॉपर मैसेज Hmm. Okay. पढ़ लेंगे, Hmm. कुछ लोगों को इमेजेस Okay. कि इनके घर में ये रूम में ये प्रॉब्लम है, आंखें बंद करेंगे उनको वो इमेज नजर। Okay.
किसी को उनकी एंजल वॉइस मैसेज। Is this what the mentalists generally do? यस, स्लाइटली डिफरेंट। वो भी पूरा एक टेक्निक है जिसको हम लर्न कर सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिप्नोथेरेपी। Oh, okay, ठीक okay. है। Because I've seen few videos, so I Yes. just thought I would ask. ये Okay. ये है पूरा डिफरेंट है, Okay. बट वो लेकिन ये होता है इंडिविजुअली जो आपके लिए गाइडेंस आपको दे रहा होता है एज अ साइकिक, उसका विश्वास अपने गुरु अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब आपके पास आया, एक फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मल एजुकेशन लिया साइकोलॉजी का कि ह्यूमन टेंडेंसी है क्या, Right. क्यों जो ह्यूमंस हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे पता है कि हाँ, अगर रिलेशनशिप इशू है तो कहाँ इस बंद का फाइनेंशियल ब्लॉकेज रहे हैं। लेकिन तब बहुत ही फ्रीक्वेंट चीज़, तो आई एम यूजिंग द टैरो। अब टैरो Got इज it. जस्ट अ डिविनिटी टूल। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अगर Hmm. आपको लगता है टैरो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो नहीं, It's a guiding tool. इट इज़ अ गाइडिंग टूल। अब इसमें से अगर मुझे कुछ कार्ड लिया और मैं कार्ड निकाल के देखती हूँ, तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर ये Hmm. अब मैं ये भी गाइडेंस ले सकती हूँ कि इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसमें आपकी पर्सनैलिटी टाइप Okay, okay. So like that you decide what the other person हाँ। needs. तो Okay. ये साइकिक एंड साइकोलॉजी इस तरह से कम, तो जब Okay. हमें साइकोलॉजी की भी So नॉलेज it becomes more easy. So more it easy. works hand in hand. हाँ, एंड इट इज़ ईजी टू दोज। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जो बहुत लॉजिक, उसको बिलीव नहीं है टैरो, उसको साइंटिफिक अप्रोच। So in that sense, it is always better to have that, scientific knowledge to अगर आप sit. इसको डीपर लेवल पे समझोगे तो ये दोनों एक ही चीज। I think you have- साइंटिस्ट है Okay. उन्होंने ऑलरेडी काम करा, साइकोलॉजिस्ट थे, Yeah. रिसर्च करी, इन्हीं चीजों पे करी। अगर हम उनको पढ़ते हैं, कार्ल जंग्स को पढ़ते, पूरा का पूरा उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। Hmm. तो आपने तो कैसे पूरा हम कह परसेप्शन दें? चेंज, जो लोग सोचते हैं ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, इनको अगर सही हम है। कंबाइन करेंगे, ठीक है, अप्रोच अलग हो अलग सकती है, अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है, लेकिन जब आप डीपली जाते हो, हम्म। अच्छा, फॉर बीइंग अ साइकिक रीडर, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहना थोड़ा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड डीपली फ्यू थिंग्स की लाइफ में। यू हैव बीन अ हीलर और इनटू दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स। आपने कब से अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी और ये स्पिरिचुअल पाथ चूज किया? हाँ भाई, ये मेरे लिए सही है, आई लाइक डूइंग दिस। हाउ डिड यू फील इट? व्हेन डिड यू स्टार्ट इट? इसको ऐसे देखोगे कि मैंने कब से शुरू करा, तो मैंने तो चाइल्डहुड से शुरू करा था। अच्छा, लाइफ में ना कुछ और वो इंसिडेंट आपकी लाइफ परसेप्शन चेंज कर देता है। तो इन माय लाइफ आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 7। वहाँ मैंने देखा कि लोग चले जाते हैं आपको छोड़ के। तो फॉर एग्जांपल वो जर्नी जब स्टार्ट हुई तो वो पेन होता है, और वो पेन जब आपकी लाइफ में आता है तो आपके पास दो चॉइस, या तो यूटिलाइज इट या Yeah. स्पॉइल योरसेल्फ। दो ही चीजें होती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पॉइलिंग देमसेल्फ इफ दे आर फेसिंग एनी पेन इन देयर लाइफ। मेरी लाइफ में जब वो पेन आया तो मुझे वो डिटैच, एक डर जो था वो, और तो इस डर को दूर, तो मैं अपनी मम्मी के साथ जब भी बैठती थी तो शी यूज्ड टू से भगवान का नाम लो, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम ले, बट कैसे ले? एक बच्चे को आप समझा रहे हो भगवान का नाम लो, तो उसको, बट फिर भी वो भगवान का नाम तब से शुरू हो गया। एंड धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई, एंड देन कहते हैं फर्स्ट जॉब जब मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे भी इट वाज अ एमएनसी, जापानीज एमएनसी। वहाँ पे आई वाज वर्किंग एज एन एचआर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आई हैव सीन मैनी पीपल आर रियली स्ट्रगल। कोई भी खुश नहीं है, नो मैटर किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कितना पैसा उनको मिल रहा है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आपके अंदर है। ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई कि मुझे ना तो ये खुशी दे सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रमोशन के बाद आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक प्रमोशन के बाद आप दूसरे प्रमोशन को देखोगे। आपको लगता है एक सर्टेन कार आप परचेज़ कर लो, आप फिर खुश हो जाओगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। नेक्स्ट गाड़ी आपके माइंड में चलने लगेगी, जैसे ही वो गाड़ी आपके घर के आगे खड़ी हो वेरी जाएगी। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आपको ये लगता है कि एक 10 सीआर का बंगलो आप बना लो, 20 सीआर का बंगलो बना लो, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, आप बनवा के देख लो, बिल्कुल नहीं होने वाला जब ऐसा। पैसा ज्यादा हो जाता है तब हाँ, डर और ज्यादा हो बहुत जाता है। ज़्यादा हो जाता है। तो True. द थिंग इज़ दिस, फिर खुशियाँ हैं। आपको लगता है मेरा पार्टनर बेस्ट है, आप 1 साल साथ में रह के देख लो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, आपको खुद पता चल जाएगा। तो नो वन इज़ परफेक्ट एक्चुअली। Yes. और जब आप अंदर से टूटे हुए होते हो, तो आप दूसरों से बहुत डिमांड करते हो। Mm. यू अंडरस्टैंड मी, यू टेक केयर ऑफ मी, यू गिव मी लव। तो इस तरह से जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो फिर वहाँ पे एक ही सोल्यूशन मिलता है, अपने अंदर झाँको। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेडिटेशन की। Okay. एंड देन मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट करा, फिर साइकोलॉजी, एंड देन सारी मॉडलिटीज़ जो मैंने लर्न करी, ऑलमोस्ट 35 मॉडलिटीज़। धीरे 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 सबका सार जो समझ में आया वो यही है कि इस दुनिया में आप आए क्यों हो, आपकी सोल का पर्पस क्या है। मेघा इज़ नथिंग Without परमानेंट। something. कुछ हम लोग छोटे होते हैं, हमारी बॉडी बड़ी होती जाती है, कुछ परमानेंट है। आज हमारी जो एज है, क्या हम इसको स्टोर, सच क्या है, व्हाट इज ट्रू, जो, और हम उन Right. चीज़ों को सच मान रहे हैं जो हर मिनट में बदल रही है। True.
तो इस चीज़ की जो नॉलेज है वो आप कब रियलाइज़ कर पाओगे, जब आप ईश्वर के थोड़ा-सा करीब अपने आप को पाओगे। Hmm. तब आपको ये समझ में आएगा कि इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो कौन है, वो ईश्वर है। एंड वहाँ से आप सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह Right. से मेरी तो सबसे पहले हम खुद के ऊपर काम करते हैं। You understand yourself. फर्स्ट यू बिकम योर ओन मेंटोर। Yeah. So this is what you call as the inner child work. It is not inner child work, it is something we call it in the spirituality awareness period। Okay. Okay. है 30 है 25 है, आज तक उसकी माइंड वो सच्चाई चल रही है कि आई एम यूजलेस, आई Right. कांट अर्न मनी। तो अगर मुझे इन सब चीज़ों पे काम करना है, इट इज़ कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग। तो हम क्या Okay. करेंगे, आपको आपके इनर चाइल्ड पे लेकर के जाएंगे, जिस एज में वो बच्चा सफर। Okay. कुछ लोगों को एज, लेकिन जब हम लेकर के जाते हैं तो वो सब रिकॉल हो जाता है उनको। Okay. बहुत छोटी सी बात है, बट छोटी सी वो बात। वो करेक्ट। तू बच्चा है अभी, क्यों इस पे पढ़ रहा इस पे है हाँ, ना? तो ये सारी चीज़ें जब आप लेकर के बड़े होते हो तो आपको ये देखना है कि अगर मेरे को एंगर इशू है, हम्म अगर नहीं कर पाया तो आपका बॉडी तो बड़ा हो गया है, लेकिन आपका बच्चा वो छोटा है, उसको अभी भी नहीं पता वो कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करना है। Right. This is something really big to understand on the first place, and then only, क्योंकि पहले तो रियलाइजेशन हो कि भाई हाँ ऐसा कुछ है, एंड देन आई नीड एन एक्सटेंडेड हेल्प, Yes, ठीक है, एंड दैट इज वेयर पीपल लाइक यू कम इन हेल्प अस, सो दैट रियलाइजेशन हैज टू कम। आई थिंक एवरीबडी नीड्स इट, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि रिलेशनशिप इश्यूज इन अ नियर मे बी इन 10 years वी आर सीइंग लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज होता था, बट लोग बाहर बोलते नहीं थे कि डर से, अरे हम बोलेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल पीपल जज अस, बट नाउ probably people are coming, they're talking about it. Could be one of the reason as far as I am understanding, but what are the issues, what are the issues right now with the people who are coming up to you? ओके, तो अगर हम रिलेशनशिप बेसिकली दो लोगों से चल, रिलेशनशिप में दो इंसान आ जाते हैं, दो सोल आ जाती हैं, तो उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक तो ये भी पॉइंट इसमें आ जाता है कि एज पर द कर्मा यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, फिर हम Yeah, इसको yeah. साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। Yeah. तो अगर हम देखें कि यही एक सर्टेन इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, इसी से मैंने शादी क्यों करी, और ये इंसान मुझे समझता क्यों नहीं है, ये इंसान मेरी केयर क्यों नहीं कर, ये इंसान मेरे इमोशंस को क्यों नहीं समझता, ये बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, देखो हम जब भी इस दुनिया में आते हैं, हमारी सोल जब इस दुनिया में आती है, उससे पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट लिख के जाते हैं। ठीक है, अरे ये तो भगवान का लिखा हुआ है, तो that is what कॉन्ट्रैक्ट we- मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेघा okay, the lessons to be learned. लेसन्स टू बी Okay. लर्न, Okay. फॉरगिवनेस लर्नी है, इंडिपेंडेंस आपको लर्न करना है, कॉन्फिडेंस आपको लर्न करना है, और अटैच करनी है, क्या लर्न करना है आपको। तो जिस तरह के लेसन्स आप चूज करते हो या लर्न करने हो, तो क्योंकि हर सोल अपग्रेड करने आता है, हर सोल, बट इस दुनिया में आते ही हम भूल जाते हैं कि Yeah. हम एक सोल, हम लोग Right. मैं आई में लग जाते हैं। मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सुख, मेरा संपत्ति, मेरी जॉब, मेरा ये, मेरा वो। व्हाट इज योर्स एट द एंड? जब आप जा रहे होते हो क्या लेके जाते हो साथ में? बार बार आपको मीटिंग में इंसल्ट कर रहा है, आपको बार बार कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट कर देता है। तो So क्यों? that relationship has come to teach you. आपकी वाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ है, आपको वो लेसन लर्न कराने आया। तो कितने ये होते हैं ब्रेकअप, 4 महीने ऐसा चला था कि यू आर माई लाइफ, Exactly. 4 महीने के बाद हु यू आर। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि 4 महीने के बाद तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए? तो वो इंसान आपको लेसन लर्न कराने आया था, अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। इतनी जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट, Okay. Okay. तो वो ट्रस्ट इश्यूज जो आपके अंदर डेवलप हुए हैं, वो ट्रस्ट पहले आप अपने अंदर ट्रस्ट करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो। तो आपको ये लेसन लर्न करनी पड़ेगी। जब तक आप वो लेसन लर्न, आप 1 2 3 हर रिलेशनशिप में जाओगे, सेम पैटर्न। Is it also that called as karmic relationship? कार्मिक रिलेशनशिप ऑल्सो, Okay. राइट। Okay. तो एक बंदा है, अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, अब क्या है बेसिकली, जब रिलेशनशिप काउंसलिंग मेरे पास आती है तो उनको ऐसा लगता है मेरे मेरा पार्टनर, हमेशा हम अपनी गलती कभी हम आसानी से नहीं समझना मानते। ही नहीं चाहते। हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, हम पर झगड़ा भी होता है, नहीं तू नहीं। तो हम बार बट Right. ऐसा पॉसिबल, तालियां दोनों हाथों से बज रही है Right, कि एक right. ही इंसान गलतियां कर रहा है, गलती की मूर्त एक ही इंसान है और आप ईश्वर हैं। तो सबसे पहली चीज लोग नहीं समझना चाहते, तो जैसे ही वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको इस स्टेज पर लेकर आती हूँ जहाँ पे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, कि पार्टनर ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी है, पार्टनर मेरे साथ नहीं है, मुझे चीटिंग कर रहा है। ठीक है, चीटिंग के केसेस भी बहुत ज्यादा। Yeah, yeah.
तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे अवॉइड कर रहा है? तो माय सिंपल क्वेश्चन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ? होगा आप किसी हीलर को उसी टाइम पे ही अप्रोच कर सकते हो जब आपको हील होना है। Okay, okay. That is also part of, यस, दिस how इज it ऑल्सो works. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब हम दो Hmm, सबकॉन्शियस माइंड hmm, से अपनी hmm. प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज अ पावर टू सॉल्व एनीथिंग इन योर लाइफ। ऑल्सो कहते हैं जैसे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो कैरी करते हैं, प्रॉबेबली हो सकता है कि पिछले रह गया होगा, इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मे बी अ साइकिल है, एंड देन यू फिनिश इट, उसके बाद जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छा होगा। ये क्या सिस्टम है, व्हाट इज इट? और इसको ये भी कहते हैं कि ये कार्मिक, राइट? सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ये दैट? बहुत डीपली है एक्चुअली, इसको हम समझेंगे दो तीन तरीके से, क्योंकि ये खाली कार्मिक नहीं हो सकता। ये ओके, खाली हम इसको बोलें कि तो पहले आप मुझे ये बताओ, ये कार्मिक रिलेशनशिप होता कैसे है और ये सोलमेट क्या बहुत अलग चीज़ है। पहले कार्मिक ओके को समझ लेते हैं। फॉर हाँ एग्जाम्पल, इस जन्म में हम लोग मिले और मैंने आपसे कुछ मनी बोरो, मैंने कहा मैं आपको दे दूंगी हम्म 1 साल में, और मैंने वो मनी आपकी वापस नहीं करी, और कहीं ना कहीं मैं इस बॉडी को पूरा करके चली गई। हम्म अब आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मेघा ने मेरे पैसे, आपके दिमाग हाँ में मेघा चली गई। या तो क्या हो गया? किसका कनेक्शन बन गया? किसका संस्कार तो ऐसे ही रह गया। कैरी नहीं कर रहा है पिछली जन्म से? आप उसको नहीं सिखा सकते। वी गॉड थिंक इट्स इन बिल ओके कर्मों के हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर आते हैं। आप अपने कर्मों के हिसाब से अपनी लाइफ में चीज़ें बनाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। भगवान को इन्वॉल्व ना करो इन चीज़ों में, वो दिस तो इज सबकी खुशियाँ चाहता है। दिस इज टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंट परसेप्शन विच आई कैन से तो ओके द थिंग इज दिस, तो फिर क्या होगा? अब आपकी नेक्स्ट जन्म, आई बिकम सो कॉन्शियस अब द बी, अब आप बहुत अच्छे, इट्स कॉल्ड कार्मिक कनेक्शन। इस ओके तरह से कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में भी फेस कर रहे हो, उसके 2 रीज़न होते हैं। या तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि भाई तुम नेक्स्ट जन्म में मुझे ये लेसन सिखाओगे, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आई हूँ, तो मैं बोलूँगी कि यार मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, आई लव यू सो मच, कैसे मैं तुम्हारे साथ इतना जो दैट इज व्हाई इट इज मेजरली मेंशन दैट हस्बैंड एंड वाइफ कार्मिक रिलेशनशिप कार्मिक के लिए रिलेशनशिप, मेजरली दे टॉक हाँ, अबाउट वैसे हस्बैंड हर वाइफ। चीज़ कार्मिक ही रिलेशनशिप में हाँ आती है, आपके और बच्चे ये भी का कहते हैं ना कि राइट जनरेशनल जनरेशन, ट्रॉमा, दैट्स क्वाइट जनरेशनल, इंटरेस्टिंग। अगर किसी भी लाइफ में अगर आप देखोगे जहाँ पे बहुत डाइवोर्स होते हैं, मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, बच्चे नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के अंदर जनरेशनल कर्स हो, और वो कौन सी, हमें लगता है ना कि अगर किसको क्या पता चल रहा है, सो एक्चुअली दीज आर द थिंग्स क्रिएटिंग द इम्पैक्ट फॉर योर नेक्स्ट 7 जनरेशन। बट कर्मा तो मतलब हमेशा से ही था फिर तो, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि हम आजकल ये ऐसी बातें बहुत सुन रहे हैं, जैसे या फिर बहुत सारी नेगेटिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत रीसेंट टाइम्स में हम क्यों सुन रहे हैं? और मे बी अवेयरनेस ज़्यादा है आजकल, जो टेक्नोलॉजी है इसके बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, ओके और इससे अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि माँ बाप का जो किया है ना, सो ये बहुत रिलेटेबल बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग, तो उस पे व्हाट आर द कार्मिक रिलेशनशिप्स ऑफ आवर पेरेंट्स विच इज अफेक्टिंग आवर चिल्ड्रन? सो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, दिस फाइनेंशियल मनी वाला, कि अगर किसी ने किसी से पैसा लिया है, उसके पेरेंट्स अगर नहीं रहते हैं तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बच्चे। बच्चे। ऐसे ही जो वो हमारे बच्चों पर आते हैं, तो हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा ब्लड, तो हम कुछ ना कुछ तो पास ऑन करेंगे ना। कहते हैं ना, जनरेशनल टू जनरेशन चीजें पास ऑन हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वी आर इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, और जब हम बहुत क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, तो वहां पे आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख हो जाता है ना, कि हमारा राइट। सुख दुख एक है। इसी तरह से है, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, उनके कर्मा के हिसाब से। अब इसमें 100% कर्मा नहीं जाएगा, अगर मैं बोलूं कि 100% जाएगा, नहीं, कुछ कार्मिक, क्योंकि यहाँ पे फ्री विल है, हमागी कर्मा है, यहाँ पर संचित कर्मा है, यहाँ पे ओके क्रियामान कर्मा है। अब कुछ लोग हैं जिनके जो है उसके हिसाब से अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लिया। ओके जैसे अगर आज आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, ये एक्सरसाइज आपके आने वाले 10 साल सुधार देगी, तो ये क्या क्रियामान कर्मा है, कि मैं एवरी डे ओके आई एम डूइंग शैन्य शैन्य छोटा 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 कुछ 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 कुछ, एंड इट इज अ क्रियामान कर्मा विच इज क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। विच इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस। डिफरेंसेस, राइट? वो ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 100 है, तो उसने कहा अब तो चेंज नहीं होगा, मैंने फर्स्ट की तरह है, नोइंगली अननोइंगली आप नोटिस करोगे एक सर्टेन एज के बाद, आप ये तो मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट फॉलो दैट। आई विल नॉट फॉलो इट। बट या दैट्स क्वाइट रिलेटेबल, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज अभी बहुत रिलेट कर पा रही हूँ मैं। हाँ मतलब मेरा बोलने का स्टाइल, या फिर छोटी छोटी चीजें, छोटी बोलने का चीजें, स्टाइल, ड्रेसिंग का स्टाइल, ये सब मम्मी 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 बोल से बोल के फ्यू थिंग्स वी यू टेक इट फॉरवर्ड। एक तो बहुत हाँ कॉमन डायलॉग हम मतलब पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि जब तुम बड़े होगे या मदर बनोगे,
तब तुम्हें पता चलेगा। Yeah, that's ठीक है? true. That's और true. कहते नहीं हम अपने बच्चों को हमसे बात बोले, लेकिन हमेशा जो ऑडियंस भी अगर देख रही होगी तो उनको पता है ये एक ना एक फेस करते हो, देन यू रियलाइज हाँ, इट इज व्हाट एक्चुअली इट इज। exactly. It's so difficult being a mom. Yes, now we यस, can actually realize it. तो वो होता है, फिर हमें हम्म, पता लगता है, फिर हम सब कुछ कर्मा पे आ जाता है ना, फिर हमने क्या करा, अच्छा हमने ऐसा करा, अच्छा अब मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं सब चीजें। चल, तो ये आपका फैमिली ट्री है पूरा। Karma plays such a huge role in सच, someone's life. अगर आप कर्मा समझ जाते हो, आप पूरी लाइफ को समझ जाते हो, Okay. पूरी लाइफ को समझ जाते हो, तो बहुत कॉन्शियस हो जाते But हो। samajhna is not easy. It's such समझ, a depth. Acha, we were talking about the karmic relationship, right? And the soulmate. हाँ। हाँ, तो soulmate के बारे में थोड़ा बहुत if you can tell. अब सोलमेट की अगर हम बात, सोल देखिए, एक तो कार्मिक हो गया जिसमें कि आधी चीजें नहीं हुई हैं और ना है इस लाइफ में आकर के, तो कोई अगर धोखा दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपने या तो उसको धोखा दिया है या आपने उसको काम दिया। Right. अभी हम सोल की अगर बात करते हैं, सोल रिलेशनशिप की, या सोल रिलेशनशिप में हमारे लाइफ में कोई आया एज अ दोस्त बन के, हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई उसके साथ, हमने कहा ठीक है, आपके बहुत क्लोज हो गए, उससे अच्छा आपको कुछ लग ही नहीं रहा, उससे अच्छा आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और वो आपको गाइड कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रह नहीं सकता। जो सोल कनेक्शन होंगे ना, वो Okay. आपके साथ रहेंगे नहीं, Okay. वो आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ सपोर्ट आपको करेंगे, आपको खड़ा कर देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे, फिर डिसअपियर हो जाएंगे आपकी लाइफ से। Okay. सोल कनेक्शन आपको रास्ता दिखाने आते हैं, वो आपको बताने आते हैं कि तुम क्या भूल रहे हो। But what about soulmate? अब सोलमेट की बात करते हैं तो बेसिकली सोलमेट हम ऐसे ही लगता है, हम जो हमारी रिलेशनशिप में है वही सोलमेट हो सकता है, बट सोलमेट हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सोलमेट हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। Right. ठीक है, सोलमेट हमारा, अब सोलमेट की अगर बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार सोलमेट मेरा लाइफ में आ गया तो वही मेरा सब कुछ है ना। अब सोलमेट को अगर हम इस तरीके से देखिए, एक सोल के 2 पीसेस कर दो, उनको डिवाइड कर दो, तो आधा सोल आपके अंदर चला गया, आधा आपके सोल क्या कहते हैं, आपके पार्टनर के अंदर चला गया, तो इट बिकम वन। तो जब भी आप एक दूसरे के सामने आओगे, आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपके अंदर फैमिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, आपको लगेगा कि यही सब कुछ है, यही मेरा पार्टनर है। बट अगेन, ट्विन फ्लेम भी आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहते हैं। ट्विन फ्लेम भी आपकी लाइफ में Okay. आते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप शादी में हो सकते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपका हस्बैंड हो सकता है, डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन आप ये कहोगे कि मैंने जितना भी टाइम इस इंसान के साथ बिताया, ये बहुत ही क्वालिटी टाइम था मेरी लाइफ का। Okay. तो twin flame का मतलब ये है कि it was a good It relationship. is a good relationship. It comes Okay. for the reason to Okay. teach you the lessons. But Like a this is soul. also very much similar to what karmic relationship was. Karmic and the soul. It's almost similar. Almost सारा similar. कुछ, लेकिन Okay. हर किसी का काम डिफाइन होता है, हर किसी का एक वर्क डिफाइन होता है बट soul अगर का। कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है तो उसको समझ में वो कैसे समझ पाए कि हाँ भाई मैं ऐसे एक रिलेशनशिप में हूँ. Okay. व्हाट आर द साइंस बेसिकली? कार्मिक रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले कर्मा को समझना पड़ेगा, कर्मा पे Right. विश्वास करना पड़ेगा। अगर Right. आप कर्मा पे विश्वास नहीं करते हो तो आप ब्लेम में रहोगे। कर्मा पे विश्वास करने का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, इट इज़ समथिंग कि मैंने ही ये क्रिएट करा है। जिस टाइम पे आपके अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है, उस टाइम पे आसपास के लोग आपको दुश्मन नज़र नहीं आते हैं। आसपास के लोग आपको समझ में आते हैं कि ये मुझे कुछ सिखाने आया है। ये Okay. इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ है, इस इंसिडेंट में मैं और अच्छा क्या लर्न कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो व्हेन यू बिकम सो अवेयर, अवेयरनेस जब आपके अंदर आने लगती है, तब आपको हर इंसान सिर्फ और सिर्फ एक सोल नजर आता है। बट फॉर दैट आई थिंक वी हैव टू बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपके, सबसे पहले यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ सोल, मैं आए हो उस लाइट के सहारे आए हो, आप इस दुनिया से जाओ, आई एम द वन। ऐसा कुछ केस आपके पास आया है एंड यू हैव हेल्प देम आउट? यस, केसेस Okay. बहुत सारे आते हैं ऐसे। तो अगर अब एक if you एक can केसेस मैं discuss. आपको बताती हूँ। तो जैसे अभी मैं एक रिलेशनशिप हैंडल कर रही हूँ, जहाँ पे जो रिलेशनशिप में लड़की है वो मैरिड है और जो लड़का है वो अनमैरिड है, एंड इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट Okay. 15-20। It's kind of extramarital एक्स्ट्रा affair. मैरिटल अफेयर है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा करा होगा कि आपको उस रिलेशनशिप से कुछ सीखना था, लेकिन आपने क्या करा, डिपेंडेंसी ढूंढ ली बाहर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि जो चीज़ मुझे सेल्फ लव लर्न करना था वो मैंने लर्न ना करके मैंने कोई एक और पार्टनर बाहर ढूंढ Depend. लिया। जब तक आप डिपेंडेंसी ढूंढते रहोगे, आप अपने कार्मिक को सेटल नहीं कर पाओगे। Okay. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, अकेलेपन से डर जाते हैं, तो हमें लगता है जैसे ही खालीपन और अकेलापन मेरी जिंदगी में आया, आई नीड समवन टू हाँ.
कंप्लीट तो हुई, किसी को ढूंढ तो लिया। किसी को ढूंढ लिया। हम्म, अब जब कोई और आपकी लाइफ में आ गया तो आपका तो मेन लेसन गया ना काम से, डिपेंडेंसी आपकी हम्म, उसके ऊपर चली गई। अब फिर से लड़ाई, ओके। फिर से झगड़े होंगे। तो कब तक आप ऐसे 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 करके चीजें करते रहोगे? तो अब इस बंदी के साथ में जब कि भाई तुम किस चीज से भाग रहे हो? हम्म। तो जनरली कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि सेल्फ लव करो और उसको ब्रेक करो, सेल्फ नॉट लव, लाइक डिपेंडिंग समवन। तो एक ही चीज हमारे साथ हमेशा आती है, इज सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस एंड योर ओन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी के अंदर। तो आइडेंटिटी में मैं खाली ये नहीं बोल रही हूँ आपकी पोजीशन क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपका स्टेटस क्या है। आइडेंटिटी मीन्स कि हु एम आई इफ नो वन इज देयर, who am I if I am in that empty room? Okay, so we have discussed a lot about the karmic relationship and what soulmate is. तो ये सब बहुत डिस्कस कर लिया हमने। तो coming to child psychology, okay, because you also give counseling for children who are Yes. school going children. तो child psychology पे जब आते हैं, काउंसलिंग जब देते हैं बच्चों को, तो बच्चों की समझ बहुत कम होती है, राइट? एंड ऑल्सो दे डोंट कम आउट कि हाँ भाई मेरा प्रॉब्लम ये है, तो वो नहीं बोलते हैं। फॉर यू आई थिंक इट इज़ अ मेजर चैलेंज टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो आप उसको अप्रोच कैसे करते हो? तो कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे खुद नॉटी बहुत होते हैं, तो टीचर, क्लास टीचर अपने आप उनका नाम रिकमेंड कर देगी कि भाई इस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, अच्छा, ये बच्चा ठीक है। फोकस नहीं कर पा रहा है क्लास के अंदर, इसका Okay. कंसंट्रेशन नहीं है, या ये बच्चा, इसका बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, है इसका एकेडमिक इश्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह से टीचर्स आपको कर देंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है क्लास में, हाँ, तो नहीं बोलते। कुछ टीचर्स उनको, अब मेरा क्या है, अगर आई एम गोइंग इन द स्कूल एंड जहाँ पे मैं ग्रुप सेशंस लेती हूँ बच्चों के, एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, तो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से वो आंसर कर रहे होते हैं, वो बता देता है कि इनका पर्सनालिटी क्या है, इनको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली देखा गया है आज के टाइम में बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। उनको ऐसा वही मैं लगता पूछने है, वाली थी, आजकल के बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके मन में, तो वो इस वजह से बोल भी नहीं पाते, चीज़ों को समझ भी नहीं पाते, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं, और फिर उनको लगता है क्या ही बोलना। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पेरेंट्स स्पेशली, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो अंडरस्टैंड दिस वन स्मॉल थिंग कि आपका बच्चा अगर आकर के कोई बात कर रहा है आपसे, लिसन उसको टू देम। सुनो, प्लीज लिसन। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं सुनोगे ना, उसके अंदर ये नहीं बैठ पाएगा कि मेरी लाइफ में कोई सेफ्टी नेट है। आपको एज अ सेफ्टी नेट रोल प्ले करना है अपने बच्चे की लाइफ में। अब या तो पेरेंट्स आजकल के ओवर दे रहे हैं, ओवर गिवर बन रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसको फोन चाहिए, इसको मैकबुक चाहिए, इसको ये चाहिए, ठीक है, गिव 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 गिव। नाउ आपका, और आजकल के फसाड में तो पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, तो दोनों बाहर working चले जाते हैं, आते तो क्या लेट, दे डोंट कंपनशेट स्पेंड। करते हैं, हाँ, कंपनशेट करते हैं, समझ में आ रहा है कि मैं टाइम नहीं दे पा नहीं रही, दे पा रहा तो हूँ। वो मेरा बच्चा जो मांग रहा है, PS5 मांग रहा है, उसको PS5 दिला दो, उसको मैकबुक चाहिए, उसको मैकबुक दिला दो, वो खुश रहे। मैं उसको कंपनशेट, मैं अपने प्यार को कंपनशेट कर रही हूँ। तो आपका प्यार इन सब चीज़ों से कंपनशेट नहीं होगा, आपका बच्चा भी। अभी भी एक केस में हैंडल कर रही हूँ, 25 साल का बच्चा है, ड्रग्स एडिक्टेड है बच्चा, और उसकी जो मेन इशू है वो यही है कि बचपन में उसको पेरेंट्स का मीडिएटर बन करके रहा, पेरेंट्स का मीडिएटर बन करके रहा, ओके। माँ सारी कंप्लेंट अपने बच्चे से करती रही, बच्चे ने बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत जल्दी मेच्योरिटी उसके अंदर आ गई। बचपन फैमिली ने ऐसा क्या किया होगा कि वो अपनी फैमिली से नफरत कर, शी इज फाइंडिंग समवेयर एल्स। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट तो बच्चों तो को, सुनेंगे तो बच्चे, सुनेंगे। हाँ, आजकल के बच्चे नहीं सुनने नहीं वाले हैं सुनते। ऐसे, आप कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाए, आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट मत करो, ना ही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। टाइम स्पेंड करना है, उनको हग करना है, उनके साथ बैठना है, उनका सुनना है, उनको लगे मेरे पास कोई है। यही से वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है, छोटे बच्चे के अंदर। तो 0 से लेकर के 13 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है, आपको बच्चे की जरूरत है, बच्चे को आपकी जरूरत है। अगर आप ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से अपने बच्चे को दे देते हो, आप एक अच्छे इंसान को इस दुनिया में लेके उसको लव एंड सपोर्ट, then it's तो डोंट totally ब्लेम टू द सोसाइटी, right. So their Correct it. adulthood will be very different. एब्सोल्युटली। हम लोग कहते हैं ना इतना क्राइम बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ Correct. ईच एंड एवरी पर्सन विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्राइम ही खत्म है। हम लोग Right. दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आई एम नॉट गिविंग। तो ज़्यादातर तो ऐसा हो गया कि हम पेरेंट्स को काउंसलिंग दें फर्स्ट। हाँ, बहुत है ना? जरूरी है। सो हैज़ इट हैपेंड Yes. विथ यू कि आप बच्चे के
प्रॉब्लम्स को सुन के फिर आप पेरेंट्स को काउंसलिंग देते बिल्कुल हो? होता है। मैं ओके। पेरेंट्स को बुलाती हूँ, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग होती है। अब एक केस था जिसमें एक बच्चे को 6 मंथ्स की एज में उसके दादा-दादी के घर भेजा। अब दादा-दादी पूरे विलेज से थी, तो उन्होंने क्या अच्छे से मारा-पीटी करके उसको ट्रीट, तो वो प्यार उसको नहीं मिल पाया। फिर जब वो 7 इयर्स का कंप्लीट हुआ, वो अपने पेरेंट्स के पास आया, तो अभी वो अच्छी तरह से स्पॉइल्ड हो चुका था बच्चा, क्योंकि उसको मार-पीट कर अगर वो अब यहाँ रिजिड हुआ, तो इन्होंने सोचा हम बच्चे को हॉस्टल डाल देते हैं, बच्चा ओके। हमारा सुधर जाएगा। हाँ। एक तो वैसे ही डिस्कनेक्ट करा, फिर आपका बच्चा आपके पास आया, उसको फिर आपकी ज़रूरत थी, फिर आपने हॉस्टल। हॉस्टल गलत नहीं है, हॉस्टल बिल्कुल गलत बट इस नहीं है। सिचुएशन में तो गलत हो गया लेकिन ना? इस सिचुएशन में गलत हो गया, जहाँ पे आप अपने बच्चे को कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप फिर पनिशमेंट दे रहे हो उसको, उसके लिए तो वो हुँ। फिर पनिशमेंट हो गया। तो वो आया, हॉस्टल में नहीं रह पा रहा, अब वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है हुँ। हॉस्टल में कि मुझे नहीं रहना, ये बहुत मुझे बाउंडेड लग रहा है। उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो अपने बच्चे के साथ ऐसा? तो उन्होंने कहा मैम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हम इसको सुधारना चाहते हैं, आप कैसे सुधार सकते हैं? Unknowingly so many things happen. चले जाएँगे, और जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहोगे, उतना ज़्यादा डिसीज़ेज़ बढ़ती जाएँगी। Hmm. The only solution to this is stay connected with your children always, so that if anything is there, they'll be, able to talk to बिकम अ you. सेफ्टी नेट फॉर योर Yes. चाइल्ड, एटलीस्ट 0 टू 13 इयर्स। हो स्ट्रिक्ट, हो अथॉरिटेटिव, मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात Hmm. समझ रहा है, तो वो सरेंडर कर देंगे अपने आप को। Hmm. My God. Very sensitive. Children are very sensitive. Okay. So, I mean, we have spoken about kids also a lot. So, next, we'll move on to the next segment, which I would say, because you're also a numerologist. ठीक है? तो recent times में वैदिक न्यूमरोलॉजी पे बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है? पहले तो कुंडली मिलाते थे, अभी न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं. नॉट ओनली फॉर गेटिंग मैरिड, दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो उसके लिए भी दे आर. वाई इज Vedic numerology so important it has become to somebody's life? हम इसको बहुत, तो एक पर्टिकुलर डेट में, व्हाई दैट पर्टिकुलर डेट एंड पर्टिकुलर टाइम, अच्छा डिफरेंट डेट पे पैदा होता है, तो जो नंबर्स हैं वो आपके जन्म से ही डिसाइड हो जाते हैं। जो एक चीज़ डिसाइड होती है ना कि बच्चा किस नंबर से, उसी मोमेंट से, इवन हम्म. टाइम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर टाइम भी इधर से हो जाता है, हम्म. ठीक है, तो वो नंबर जो है उसकी वैल्यू, अब ये जो बच्चा होगा बहुत इमोशनल होगा, बिकॉज 2 क्या है, मून को दर्शाता है, हम्म. ठीक है, So every number is linked to द प्लैनेट। तो नंबर 2 इज अ मून एनर्जी, बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, वो सिर्फ अपने बर्थ डेट पे डिपेंड करता है. डिपेंड ओनली द करते हैं, डेट ऑफ द बर्थ. जस्ट डेट। तो आपका ओके. डेस्टिनी नंबर है, वो डिफाइन करता है कि आप एक्चुअल में आगे चल करके क्या, मतलब 2 ही नंबर हैं जो तो आप, डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड का मैंने एग्जांपल लिया, तो सेकंड सेकंड द डेट, मंथ एंड द एंड ईयर. ईयर। अब ओके. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 90 फॉर एग्जांपल ओके. ऐड ऑन करेंगे, तो फॉर ओके. एग्जांपल 2 + 2 + 9 + 8 8. डेस्टिनी नंबर होगा। ओके. कुछ इसी न्यूमरोलॉजिस्ट को क्या ऐसे हम हैं, बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक? मूलांकन भाग्य। ओके. कुछ जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो ईयर को भी काउंट करते हैं, बट उसकी जरूरत होती नहीं हम है। अभी जो भी भी students. 26, ओके. उसको आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका डेस्टिनी नंबर बनता है, टोटल बनता है 18, हम्म. तो 1 + 8 आपका हो गया डेस्टिनी नंबर 9, हम्म. ठीक है। बेसिक हो गया आपका 2, बिकॉज आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 है, टोटल हो गया उसका 9 था यहाँ पे। और 9 denotes to. ओके. ओके. कहते हैं उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, वो वाह. जितना ज़्यादा अपने गुस्सा करेंगे, एंगर को चैनलाइज करेंगे, क्योंकि उनको बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर ये एक्टिव नहीं है नंबर 9 वाले, तो होगा क्या कि ये बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, इनको ओके. लगेगा कि हमारा कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है लाइफ के अंदर, हाँ. ओके. दे विल फील वेरी लो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा उनका बहुत ज़्यादा बहुत लो। लो. ये जितना ज़्यादा एक्टिव, जितना ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट, इनके जो डेटी हनुमान जी कैसे हैं, ओके. शक्ति जो, दोनों में से एक चीज बेचनी पड़ेगी आपको, पैसा कमाना है तो की बात करते हैं, हम्म. क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हो उस चीज के लिए। ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है जिसकी एज सिर्फ 14 ईयर्स है, वो बच्चा अपने पापा से डिमांड करता है, पापा मुझे एक केटीएम बाइक दिला दो, पापा दिलाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं. क्यों? 14 साल का बच्चा है. क्यों नहीं दिलाएंगे? 14 साल के बच्चे को, बच्चा तो मांग रहा है, बच्चे की तो जिद है, बच्चे का तो मन है, बर्थडे आ रहा है उसका, नहीं दिलाएंगे? 18 years. हो सकता है, राइट. तो जनरली शनि एब्सोल्युटली राइट, वो आपको प्रिपेयर करके आएगा जहाँ पे वो मिसयूज ना मिसयूज ना करो. ओके. दैट्स सच अ डेप्थ टू दिस. जनरली आपके पास जो लोग आते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनको बताओ कि आप यहाँ स्टक हो और उनकी they are प्रॉब्लम already in सॉल्व। such a great problem, they don't want to understand all this, right? मतलब नहीं बता सकते, को क्या पता क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है, वो बट तुमसे कोई शादी के लिए अपना वो कुंडली मिला के उसके बाद आते हैं न्यूमरोलॉजी देखने के लिए कि हाँ भाई उन दोनों का हाँ, सही है आते कि नहीं.
ओके, आते हैं, वो देखना चाहते हैं डेट। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप कंपैटिबिलिटी। न्यूरोलॉजी से पता कर सकते हो। नंबर्स अच्छा, जो हैं उससे बहुत अच्छी तो तरह आप से आपके पता। बेसिकली भी बता सकते हो कौन से नंबर से जा सकता है? यस, तो कुछ नंबर्स हैं जो आई नो इट इज़ अ बिग प्रोसेस। नंबर 2, नंबर 4 इज़ अ लॉजिक। नंबर 2 और नंबर 4 का अलग-अलग ही रहेंगे, ओके, ठीक अ है? जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑन देम। ओके, यस, देखिए नंबर 2 का 8 के साथ जाएगा, ओके। कम्फर्ट दे देगा। कौन से 2 नंबर्स बहुत अच्छे से मिलते से 2 नंबर बहुत अच्छे से मिलते हैं, 1 एंड 6। एंड अगर आप देखो नंबर 9 का जो है इट इज़ लाइक एंगर रहता है, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत हाई होती है, तो नंबर 9 का 2 के साथ नहीं बैठ पाएगा। हुँ, राइट, ओके, जो देखी जाएगी तो उनको भी हम लोग कंसीडर करेंगे एंड उसके राइट। बाद कंपैटिबिलिटी चार्ट बनेगा आपका। एंड आई गेस सेम लाइक दैट जो अपोजिट पर्सन है उसका भी एक तो एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन एनर्जी। कन्वर्सेशन बहुत ओके, इंटेंस टॉपिक्स में हमने बात कर लिया। ओके, अच्छा ये सो थेरेपी और टैरो। थेरेपी ओके, मोस्ट ओवररेटेड वेलनेस ट्रेंड। मोस्टली आई थिंक शैडो वर्क। One myth about healers you want to kill. वी हैव अ मैजिक वॉन्ड्स एंड वी कैन हील एवरीथिंग। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता बहुत है। कुछ बहुत एफर्ट्स होते हैं उसके अंदर और आपको भी काम करना पड़ता है। Okay, right. The one habit that quietly wrecks people's mental health. इफ दे आर नॉट डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। Okay. A number you would never want as your life path. मुझे आप कहते बिकॉज वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो मेरे लिए Okay, done. Manifest it or work for it. work for it, you will manifestation work while you are taking the action, like while you are just executing your thought into the action. Right. तो तो जब तक manifestation जो है मैनिफेस्ट नहीं करोगे तब तक यू हैव टू फिनिश द सेंटेंस. ओके, द मोस्ट ओवररेटेड स्पिरिचुअल ट्रेंड. action for 10 minutes every day. Okay, the one thing every 20 something gets wrong about love. Other जो people can 20s complete me. Okay. People come to thinking I will fix, but the real issue is always dash. One Okay. simple thing. The universe is basically dash. To whom you trust, maybe your deities, your devta, your guru, your ancestor, भी आपका विश्वास है, ईश्वर गुरु प्रभु को आप मानते हो, बस वो यूनिवर्स है। So basically, any positive energy you believe in, you believe that Simple. completely. Don't try to change it and don't see कि Yeah. मेरे भगवान ये कर सकते हैं, आपके नहीं कर सकते। Okay. If your gut and your therapist disagree, You trust your intuition. रहे अपने लाइफ में, दिस इज लास्ट क्वेश्चन. ओके, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड दे कांट अफोर्ड फॉर अ थेरेपी, यू नो, दे कांट रीच आउट टू पीपल लाइक यू, मे बी फॉर सम अदर रीजंस एज वेल. सो व्हाट इज दैट वन थिंग, अ गो टू थिंग यू कैन जस्ट एडवाइस देम? मे बी ये छोटी सी बात है, मे बी यू विल फाइंड सम चेंजेस इन योर लाइफ. Okay. So मैं एक छोटा सा, it is very simple, everybody can use it. It's Okay. like Hmm. 21 days आपको रिपीट करना ही होगा, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 मिनट्स इन द इवनिंग। इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड। Okay. लेकिन ग्रैटिट्यूड जो भी चीज़ आपके पास, ठीक है, तो गलत इसलिए हो रहा है बिकॉज आप गलत सोच रहे हो, गलत इसलिए हो रहा है कि आप गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो। कई बार जब आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करते हो, एक्चुअली आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे होते हो, बिकॉज आप अपने संस्कार से अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम दूसरे को समझा रहे हो, लेकिन उसका संस्कार, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं और आप बोलो 2 दिन से तो मैं बिस्तर पे हूँ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। अब सामने वाला किसी और को बता रहा है, वो बोलेगा उसका बीपी लो है, उसके तो हार्ट में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, हमेशा बीमार रहता है वो। तो किस तरह की एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, A negative energy is नेगेटिव again एनर्जी। तो again उस spoke लूप about. में आप अपनी प्रॉब्लम्स को जितने ज़्यादा, Okay. I mean, I have always felt if we share with somebody, we are talking about it again and again and again and again, which is लूप है ना, which is going into our heads again, which is not helping us to come out of it, right? wherever your focus will go, उसी पे जाएगा. आपकी रियलिटी भी वही बनने लगती है। Right. तो आप Okay. राइट ग्रैटिट्यूड आप ज़रूर करें। Done. एंड एक अगर आप वेरी सिंपल आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, 21 दिन आप रिपीट करके देखें, क्योंकि ओम जो है वो आपको आपके स्टमक एरिया It's a प्रॉब्लम्स आती, vibration. इट्स अ It's वाइब्रेशन, गट से आती है, आता है, इट्स अ वाइब्रेशन। तो 15 मिनट्स ऑफ ओम चैंटिंग गिव lovely. So we'll all chant Om at Om. least 15 minutes in a day. it's really a magic. Okay. पहले तो बोलते थे, no, just rub your palms and keep it in your eyes. We should follow that now, which will help us Easy a lot. and simple but very Exactly. powerful. Lovely. That was a great message to a lot of them. हमने सुना होगा, हमने किया होगा, but आजकल, you know, time के कारण से या फिर we are running in our lives these days. So I think it's a rejuvenation of things, right? So yes, thank you so much for giving us this knowledge and, you know, trying to help us out. Thank you so much for being here. Thank you so much. For more such interesting contents, do subscribe our channel, like and press the bell icon.